Students, I welcome you all to this online platform created just for you by Directorate of Education and Career Launcher. And I'm Nandini Sarangal. I know you all are geared up, charged up, and excited for the very first session. I can see it from the chat box, although I have requested there's no use writing in chat box right now, but still, I can see a lot of chats coming up. And we have already more than 1100 students who have joined in. So I know you are full of questions. A lot of questions are bumping inside you. You want to know about your result, and there are many queries pertaining to your online sessions. Don't worry, all your queries will solved. But before that, we have to focus, because now we don't want you to waste your time on other things. Now the academic session has begun. This platform has been created so that your precious time is not wasted. So we will begin with a short session on the objectives and question paper design. This session will be taken by Anu ma'am. I would request Anu ma'am to join in and start her session about the objectives and the question paper designs, because ultimately you have to write your paper. So you have to be prepared and see what kind of questions are there and what is the marking scheme. So Anu ma'am, please join in. Please welcome. Okay. Thank you, Nandini. Good morning, students. I'm Anu Sharma, your teacher for this small session, and later on Nandini ma'am will rejoin us. Okay. So as you know, now we are in senior secondary level, and at this level we expect the higher level learning. But before designing the content material for this level, there are certain things are supposed to be taken into consideration. You know, after 10th class, some of you join universities for higher studies, but some other join jobs because of their responsibilities or whatever the reasons they are having, but some students have to join the jobs. So the syllabus for class 12th and 11th, it is designed in such a way that it caters to the need of both type of students. Okay. So before designing any syllabus or content material, the very important thing is deciding the objectives. Now, why objectives are important? You know, if they say once that if a sailor has to sail his boat or his ship to a certain port, he can only reach there if he knows where he is leading to, where he is heading to. So मंजिल ही नहीं पता है तो पहुंचेंगे कहाँ? मंजिल is very important. That's why objectives are decided. So I would like to talk about these. I would like to share the objectives with you all. So here I'm sharing my screen with you. I hope you all can see it. Okay, I hope you all can see it. So now, the core course is designed in such a way that it promotes the language skills required for academic study as well as the language skills required for the workplace. There are three domains. There are three domains and each of them has some specific objectives. They are reading, listening and speaking, and the last one is writing. Now the specific objectives of reading. Students are expected to develop the following study skills under this objective. They can be able to refer to dictionaries, encyclopedias, thesauruses, and academic reference material in any format. They can select and extract relevant information using reading skills of skimming and scanning. They will be able to understand the writer's purpose and tone. They will be able to differentiate between claims and realities. Facts and opinions form business opinions on the basis of latest trends available. They'll be able to comprehend the difference between the literal and the figurative.
They'll be able to skim for main ideas and scan for details. Specifically, develop the ability to be original and creative in interpreting opinion, to be logically persuasive in defending one's opinion, and making notes based on a text. And they are also expected to develop certain other literary skills, such as respond to literary text, appreciate and analyze spatial features of languages that differentiate literary text from non-literary ones, explore and evaluate. Now we come to the second domain, that is listening and speaking. Here some specific objectives are: here students are expected to develop the ability to take organized notes on lectures, talks and listening passages, respond in interviews and participate in formal group discussions, listen to news bulletins, and to develop the ability to discuss informally a wide-ranging issues like current national and international affairs, sports, business, develop the public speaking skills. And now we come to the last domain, that is writing. Here we expect them, the students will be able to write letters to friends, relatives, etc., to write business and official letters. They will be able to open accounts in post offices and banks, to fill in railway airline reservation forms, draft notices, advertisements, and design posters effectively and appropriately. They'll be able to write informal reports as part of personal letters on functions, programs, and activities held in school, like morning assembly, annual day, sports day. You all are familiar with. And then they'll be able to write formal reports for school magazines, events, processes, or a local newspaper about events or occasions. They'll be able to express opinions, facts, arguments in the form of speech or debates, using a variety of accurate sentence structures. We'll be able to draft papers to be presented in symposia, take down notes from talks and lectures, write examination answers according to the requirement of various subjects, summarize the text. Anuji, So, beta, hello? can you hear me, Anuji? Yes, sir. Acha. Every point little bit elaborate, थोड़ा हिंदी में भी बताइएगा. Wait कीजिएगा, because screen don't move it so fast. Students have to see, register and understand. So आप जल्दी बात आराम से कीजिएगा और हिंदी में भी बताइएगा. Okay. No, sir, I'm going to that only. Explain. Yeah. Okay, sir. Now students, hello. And now I'm back. I think आप लोगों को लगा होगा कि वाओ कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स, बट इसके साथ ही वी अंडरस्टैंड कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप पर भी और मुझ पर भी, हम टीचर्स पर भी. इतना बड़ा जो बोझ लेकर हमारा सिलेबस आ रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स का बोझ है, और उस बोझ को हमें हल्का कैसे बनाना है. हम रेगुलर होंगे, अपने क्लासेस को आराम से अटेंड करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. Being regular and being punctual will be able to solve all of our problems. And we here will also facilitate you in every possible form so that you can understand everything and we all will be able to achieve our objectives. Okay, students? Now I would like you to see one small animation clip.
Anu ma'am, can we skip this Hello. animation? Yeah, I'm trying to actually. पता नहीं क्यों It's नहीं चल okay. पा It's रही है ये. okay. We can resume the design of question paper right now. And Yeah, just skip it. If it's not working, skip it. Just go ahead. Yeah, okay, sir. Let's start. Started. It has started, sir. Literacy is the combination of these things: reading, writing, speaking, and listening. According to the experts, these life skills are essential for happiness, health, and wealth of individuals and society, which means it's vital young people have them. Having strong literacy skills gives people a better chance of finding a job and staying employed. Research shows it even makes a positive difference to health and well-being. Excellent reading and listening. It takes confidence to make conversations, or talking others. As a Prince's Trust program leader or volunteer, there are lots you can do to help build a young person's speaking. Here's a few suggestions. Prepare, prepare, prepare. Planning what to say is always an idea. Chat to them about what they're going to speak about. Are they giving a presentation, going for a job interview, maybe trying to sell a product? Mind maps and graphic organisers are useful tools to organise ideas. Get them to write down 5 or 6 key points. Help them find the best order to share them and show them how to put everything together using helpful phrases like first of all, initially, subsequently, finally. If it's a presentation, make sure they've got time to rehearse, ideally all at once. If they're going for a job interview, ask them to think about what they might be asked. What experience have you? What's been your biggest challenge? And when it comes to answering, the STAR model can be used. Describe the situation or task, the action they took, and ignore. Encourage them to think about the questions they might want to ask as well. Successful job interview, great stuff. If they're making a telephone call, learning a job, ask them to write down a list of all the information they might need. Anu ma'am, please start with question paper design. Students, kindly be patient. Nandini ji, you can take over and
continue till Anuji comes. Okay, students, we'll start. Anu ma'am, I will take over and begin the first chapter. Yeah, please do. क्या थी? Why is colors all changing? Just give me a second so that I start the slideshow. Okay, now we are going to begin with the first chapter of your textbook Flamingo. Students, you can see the cover page of your textbook Flamingo on the right hand side of your screen. You have got two textbooks. One is Flamingo and one is Vistas. And I'm going to begin with your main textbook, your reader book, which is Flamingo. And it is funny that the name of the first chapter is The Last Lesson. It's a short story. But before we begin actual reading of the story, I would like you to know that although NCERT textbooks link has been given on your account of Aspiration, but still for your convenience, I have taken both. I have taken the text, the actual text of your textbook and its explanation, because I believe many of you might not be having the textbook right now. So by the time you download your textbooks and you have got the actual textbook, we can take the text as well. So this story, The Last Lesson, is a short story written by Alphonse Daudet. But as we know that before reading a story or a chapter, it is always preferred that you have got some idea about the author and the time and setting in which that story was written. Just give me a second. It's not coming. Hmm? Mohanji, I don't know why the PPT has got stuck. Ma'am, just click on the PPT. The next slide should come. Okay, that's fine. Thank you. Okay, students, as we know, the writer of this short story is Alphonse Daudet. He was a French novelist and a short story writer. This particular story, The Last Lesson, is set in the days of Franco-Prussia War. It was during 1870 and 71, in which France was defeated by Prussia. Prussia that at that time consisted of the nations which today are Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, we see that France and its two districts,
the two districts of France, that is Alsace and Lorraine, they have passed into Prussian hands. We have to read the story to see and find out what happens when a country captures a state or a district of another nation. प्रशा, जैसे मैंने बताया, आज के समय में जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया है, बट मेन नेशन इसमें जर्मनी उस समय भी हुआ करता था. अब जर्मनी का कंट्रोल है किस पे? ऑलसैस एंड लॉरेन. ये दो नेशंस, दो डिस्ट्रिक्ट्स जो अब कैप्चर कर लिए गए हैं बाय जर्मनी. So let us read the story to find out what effect this had on life at school. क्योंकि जब ऐसा होता है तो उसका असर बहुत चीजों पे पड़ता है और स्कूल पे बहुत ज्यादा. तो चलिए शुरू करते हैं. Let us start reading the story. Okay, this is your text. I started for school very late that morning and was I, who is I over here? I कौन हो सकते हैं यहाँ पे? I is the narrator. Franz. Franz is a school going boy और वो ही आपको कहानी सुना रहे हैं अपनी, उनकी जुबानी. आज ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो हम सुनेंगे. So I is Franz and he is a school going boy. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. उसे डर लग रहा था, especially because M. Hamill, he is the teacher, had said that he would question us on the participles and I did not know the first word about them. अब उसने होमवर्क नहीं किया था. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field. Back of the sawmill, the Prussia soldiers were drilling. Prussia soldiers की कुछ activity चल रही है, drilling की. And he's so excited. He doesn't want to go to school and he's excited to watch all these things. It was all much more tempting, exciting than the rule of participles, but I had the strength to resist, to control my temptation and hurried off to school. So let us have a bit of explanation of this. Okay, can you see the picture on your screen? There's a boy who is running towards the school. He is Franz, the narrator of the story. Let me see if I can take a pen and start marking. Okay. So who is Franz? He is a school-going boy who is studying in a school of Alsace, and he is reluctant to go to school. Why? Because of the fear of being scolded for not learning the rules of participles. And what is he tempted for? He is tempted to spend the warm, bright day outside because he wants to enjoy the chirping of birds, watch Prussia soldiers drilling.
नंदिनी जी एवरी पॉइंट को हिंदी में भी दोहराइएगा। ओके सर, ओके। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर एक बॉय हु इज रनिंग, जो स्कूल तेजी से भाग रहा है। क्यों? क्योंकि वो लेट है स्कूल के लिए। और वो कौन से स्कूल में पढ़ता है? ऑलसेज, ALSACE। एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन इज ऑलसेज। ऑलसेज, जो कि अब प्रशा, स्पेलिंग्स अगर आप देखते हैं PRUSSIA, बट द प्रोनाउंसिएशन इज प्रशा, राइट। और क्योंकि अब प्रशा ने कैप्चर कर लिया है ऑलसेज एंड लॉरेन, जो कि फ्रांस के दो कस्बे हैं, फ्रांस के दो हिस्से थे, अब वो प्रशा के हाथ में है। और फ्रांस जो है, जो लड़का, वो स्कूल की तरफ भागता जा रहा है, वो लेट है, बट उसको डर लग रहा है। किससे? स्कोल्डिंग से। उसको डर लग रहा है डांट से। स्कोल्डिंग इज डांट पड़ना। क्यों? क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। वो होमवर्क उसका क्या था? लर्निंग रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। अब एक और कारण है, क्योंकि उसके आसपास और बड़ी एक्साइटिंग चीजें हैं। आज का दिन, इट्स सो वार्म एंड ब्राइट डे। वो बर्ड्स, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स देखना चाहता है, जैसे बच्चों को शौक होता है, जाके देखें। साथ में अगर आप देख सके पिक्चर में, पीछे प्रशा सोल्जर्स नजर आ रहे हैं। तो प्रशा सोल्जर्स की बहुत एक्टिविटीज चल रही हैं, विच इज वेरी एक्साइटिंग। ही इज सो क्यूरियस। वो देखना चाहता है कि क्या हो रहा है, बट स्टिल ही रेजिस्ट्स हिज टेम्पटेशन। वो अपनी टेम्पटेशन को, अपनी एक्साइटमेंट को रेजिस्ट करता है और आगे बढ़ता है। So, moving forward with the text. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Town hall? Town hall, बच्चों, वो जगह होती है, एक स्टेट, एक कस्बा, कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई सिटी का वो हेडक्वार्टर्स, जहां से सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर आप एक पिक ये वाली देखें, तो उस पिक के अंदर आपको टाउन हॉल नजर आएगा। और बुलेटिन बोर्ड जो है, मैं वापस एक बार टेक्स्ट पे जाना चाहूंगी। ओके। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जैसे मैंने बताया कि उस समय में बुलेटिन बोर्ड जरिया हुआ करते थे इंफॉर्मेशन। जो भी लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती थी, न्यूज मिलती थी, जैसे आज के समय में न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उस जमाने में बुलेटिन बोर्ड्स इंफॉर्मेशन का जरिया होते थे। एंड यूजुअली टाउन हॉल, क्योंकि मेन हेडक्वार्टर होता था किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो वहां पर ये बुलेटिन बोर्ड हुआ करते थे, जहां लोग जाकर लेटेस्ट अपडेट्स, जो लेटेस्ट न्यूज होती थी, उनको जाके देखा करते थे। बट फ्रांस क्या क्या कहता है कि फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम हियर। अब क्योंकि उनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अब प्रशा के हाथ में है, जर्मनी के हाथ में है। जर्मनी, जैसे मैंने कहा, द मेन नेशन ऑफ प्रशा, अब जर्मनी के हाथ में है। तो ही सेज कि जितनी भी बैड न्यूज पिछले कुछ समय में आई हैं, दे आर ऑल फ्रॉम दिस बुलेटिन बोर्ड। क्योंकि ही इज अ बॉय, ही इज अ यंग बॉय, ही कैन सिंपली सी दैट जब भी कोई बुरी खबर आती है, वो यहीं से पता चलती है। और वो क्या थी? द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो जब उन्हें सबसे पहले पता चला कि वो युद्ध में, जंग में हार गए हैं, तो लॉस्ट बैटल के बारे में जब पता चला, ड्राफ्ट जब उसका लिख के आया, फॉर्मली ऑर्डर्स आए कि नाउ यू हैव लॉस्ट द बैटल, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सभी उसे कहां से पता चला? बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। उसने ऑब्वियसली सोचा, अब पता नहीं क्या खराब सी, बुरी सी खबर मिलेगी। सो इसलिए उसका वहां रुकने का ज्यादा मन नहीं किया। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith walked her. बच्चों, स्पेलिंग WACHTER है, it's the name of the blacksmith, but
The pronunciation is Wachter. Wachter, who was there with his apprentice. Apprentice is his assistant, a boy who was helping him. Reading the bulletin called after me. जिन्होंने अभी बुलेटिन बोर्ड से पढ़ा, इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी. Don't go so fast, bub. Bub, जैसे हम लोग प्यार से बुलाते हैं, बेटा, बच्चे, बाबू. तो he called him. Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time. अभी बहुत समय पड़ा है, तुम पहुंच जाओगे. Which means he wanted him to stay and see what is written over there. But Franz was in hurry. He was already late for school. And so he ignored. I thought he was making fun of me. उसे लगा मजाक कर रहे हैं क्योंकि वो लेट है, तो उसे कह रहे हैं क्या जल्दी है, कोई बात नहीं, आराम से चले जाना. So now Franz reached M. Hammel's little garden all out of breath. भागते भागते फटाफट वो स्कूल के पास पहुंचा. M. Hammel's little garden, क्योंकि स्कूल के बाहर M. Hammel जो उनके टीचर हैं, उनका एक गार्डन था. जब वो भागते हुए वहां पे पहुंचा तो हम आगे पढ़ेंगे, पर इससे पहले हम जरा इस जो हमने अभी टेक्स्ट पढ़ा है उसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देखें. एक बुलेटिन बोर्ड की यहाँ पे पिक है, ये टाउन हॉल है, बुलेटिन बोर्ड का पिक है, और उसके सामने क्या है? देयर इज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड. एंड फ्रांस को क्या लगता है? इट इज अ सोर्स ऑफ बैड न्यूज. लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट, ऑर्डर्स, कोई भी अच्छी खबर वहां से उसे नहीं आई जब से उन्होंने जंग में अपने ऑल्सैज को हार दिया, या फ्रांस के हाथों से ऑल्सैज चला गया और अब जर्मनी जो है उनके नए रूलर हैं. वहां पर एक ब्लैक स्मिथ जो कि फ्रांस को कहते हैं जल्दी ना करने के लिए, बट वो उनकी बात को इग्नोर करता है. और वो कहाँ पहुंचता है भागते हुए? अपने स्कूल के पास. अभी he has not entered the school, अभी स्कूल में उसने एंटर नहीं किया है, बट उसको कुछ डिफरेंट लग रहा है. अब वो क्या कहता है? यूजुअली when school began there was great bustle which could be heard out in the street. यूजुअली काफी चहलकदमी, शोर स्कूल का उसे सुनाई देता था जब वो स्कूल के पास पहुंचता था. The opening and closing of desks, जैसे डेस्क का खुलना बंद होना. Lessons repeated in unison, करते हैं ना छोटे बच्चे जब वो एक साथ मिलके किसी लेसन को याद करते हैं. तो आपने जूनियर क्लासेस में देखा होगा कि बच्चे यूजुअली मैथमेटिक्स के टेबल्स को जब याद करते हैं, 2 1s 2, 2 2s 4, सब लोग एक साथ, very loud, इतना that with our hands over our ears to understand better. क्या कहता है फ्रांस कि हमें अपने कानों पे अपने हाथ रखने पड़ते थे ताकि हम जो पढ़ रहे थे हमें समझ में आए. And the teacher's great ruler rapping on the table. टीचर का जो रूलर, जो टीचर के हाथ में एक स्टिक या एक स्केल हुआ करता था, वो अक्सर बच्चों को शांत कराने के लिए टेबल के ऊपर वो उसको बजा रहे होते थे. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. बट आज जब वो स्कूल के पास पहुंचा, माहौल बिल्कुल डिफरेंट था. इट वॉज ऑल सो स्टिल, बिल्कुल शांति थी. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. उसने तो सोचा था कि चहलकदमी में, शोर में चुपचाप वो अपने डेस्क पे जाके बैठ जाएगा. That day, but of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Imagine, अगर एक स्कूल संडे मॉर्निंग को देखा जाए तो वो स्कूल बाकी दिनों से कितना अलग नजर आएगा, क्योंकि आज जब वो स्कूल को देख रहा था तो इट वाज सो क्वाइट.
ऐसे लग रहा था कि जैसे बच्चे हैं ही नहीं, जैसे कोई शोर नहीं हो रहा. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स. पर खिड़की से उसको उसके क्लासमेट्स नजर आए. ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब चुपचाप अपनी सीट्स पे, अपनी जगहों पे, अपने डेस्क पे बैठ चुके थे. एंड एम हैमल, the teacher, the French teacher, he was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो आज उनका टेरिबल, वो आयरन रूलर जिससे बच्चों को डर लगा करता था, वो स्टिक जिससे बच्चे दहशत खाते थे, आज वो टेबल पे ना बच के आज एम हैमल के हाथ के बीच में था, आर्म के बीच में उन्होंने उसको रखा हुआ था. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप सोच सकते हैं कितना शर्मिंदा मैं फील कर रहा था, कितना डर मुझे लग रहा था. But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, जिनसे उसे डर लग रहा था उन्होंने कुछ नहीं, उसे कोई उसको स्कोल्ड नहीं किया, उसको डराया नहीं, उसको गुस्सा नहीं किया. और वेरी काइंडली ही सेड, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू. बड़े प्यार से उन्होंने कहा, लिटिल फ्रांस जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो, हम तो शुरू करने ही वाले थे. So it's good you have come. Okay, now can you see the picture on your screen? There's a classroom and there is the teacher, Mr. M. Hamill. और उनके हाथ में you can see the terrible iron ruler. और usual scene क्या हुआ करता था? What was the usual scene? Great bustle heard out in the street. Opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud. I hope it is clear to you. So we are moving ahead. Teacher's ruler banging on the table. It is clear from the picture that how he has his stick in his hand, which keeps on banging on the table, so that क्लास में कई बार बच्चे जब बहुत शोर मचाते हैं तो कैसे मैम या सर टेबल पे जो उनके हाथ में कोई डस्टर है या कुछ है उससे बैंग करते हैं बच्चों को शांत कराने के लिए. तो इस तरीके से मिस्टर हैमिल भी अपने रूलर को यूज किया करते थे. बट दैट डे स्कूल सीम्ड स्ट्रेंज एंड सोलेम. स्कूल जो है बहुत डिफरेंट लग रहा था, बहुत शांत लग रहा था. क्यों? Because it was also still quite as Sunday morning. Their classmates were already in their places. They were village people. अभी हम इसके next text में इसके बारे में पढ़ेंगे. They were village people sitting quietly on the back benches, and Mr. M. Hamill was walking up and down with his terrible iron ruler. Okay, let's get on to the text. आगे text को शुरू करते हैं. I jumped over the bench and sat down at my desk. Remember, M. Hamill sir ने उसको कहा कि आओ आके अपनी सीट पे बैठ जाओ. He did not scold him. उसे डांट नहीं लगाई. So I jumped over. क्योंकि उसे रिलीफ मिला. थैंक गॉड सर ने कुछ कहा नहीं और वो फटाफट जाके अपने बेंच पे बैठ गया. Not till then, when I had got a little over my fright. अभी उसने थोड़ा चैन की सांस ली थी, थोड़ा डर उसका शांत हुआ था. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days.
उसने जब नोटिस किया कि उनके टीचर ने उनकी अपनी एक स्पेशल ड्रेस थी जो वो खासकर इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जब स्कूल में कभी इंस्पेक्शन होता था या स्कूल का कोई फंक्शन होता था, जब बच्चों का प्राइज डे होता था, उस समय पे वो अपनी वो स्पेशल ड्रेस पहना करते थे। वो स्पेशल ड्रेस क्या थी? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, all embroidered. Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, a village people, गांव के और लोग, बड़े बूढ़े लोग, आज वो भी क्लास में बैठे हैं, और जो बैक बेंचेस हैं, पीछे के बेंचेस हैं, उन पे वो बैठे हैं बड़े शांति के साथ। उनमें ओल्ड हॉजर हैं जिन्होंने अपनी एक हैट पहनी है, थ्री कॉर्नर्ड हैट। द फॉर्मर मेयर, टाउन हॉल के जो हेड होते हैं, फॉर्मर मेयर जो पहले मेयर हुआ करते थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, आप जानते हैं पोस्ट मास्टर जो घर में जाके पोस्ट डिलीवर करते हैं, and postmaster is actually the head of the post office, and postman is the person who delivers the post, and several other. Besides, everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer. What is a primer? Beginning में जब बच्चे ABCD या अल्फाबेट्स जब सीखते हैं, तो वो जो एक बुक होती है यूजुअली, जिसको इनिशियल लेवल पे बच्चों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए दिया जाता है, उसको प्राइमर कहा जाता है। अब ऑब्वियसली हॉजर पुराना प्राइमर जिसमें उन्होंने कभी खुद पढ़ा होगा, क्योंकि क्या लिखा गया है? थम्ब्ड एट द एजेस, क्योंकि वो काफी एजेस, कोने उसके मुड़े हुए हैं, जिससे पता चल रहा है कि वो बहुत पुरानी किताब है और जिसमें से शायद वो खुद पढ़ते रहे होंगे। वो अपने साथ लेकर आए थे, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने प्राइमर को वो खोल के बैठे थे। स्टूडेंट्स, आई होप I am not too fast, and I am having a moderate speed. Can I see the poll if you all understand what is being taught till now? So I would like to start the poll. Okay, I am not able to see the icon right now, so maybe okay, maybe sometime later we can have this poll. Okay, you can see the French teacher, Mr. M. Hamel, on your screen, and he is wearing his special dress, the beautiful green coat, frilled shirt, little black silk cap embroidered, and he never wore this except on inspection and prize days. So we are back to the text. While I was wondering about it all, wondering about, क्या सोच रहा था फ्रांस? यही सब कि सब कुछ डिफरेंट क्यों है? मिस्टर एम हैमल ने अपनी एक स्पेशल ड्रेस पहनी है, विलेजर्स बहुत शांति से आज क्लास में पीछे बैक बेंचेस पे बैठे हैं, and students are already, they are so quiet. अभी वो सोच ही रहा था इन सब के बारे में, that M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow.
this is your last French lesson. I want you to be very attentive. What a thunderclap these words to me. Which words? जब एम हैमल कहते हैं कि आज मैं लास्ट लेसन डिलीवर करूंगा, आज ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है. और बर्लिन, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल, जहां से सब ऑर्डर्स आया करते थे. The order has come from Berlin to teach only German. Now can you imagine? Alsace and Lorraine, जो कि फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बट अब जर्मनी ने उन्हें कैप्चर कर लिया है. तो अब नए ऑर्डर्स आए हैं कि ये फ्रांस के होने के बावजूद ये अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को अब नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अब इनको जर्मन लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ेगी. तो वो क्या कहते हैं? द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. जो आपके नए टीचर हैं वो कल आएंगे. सो दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आज के दिन, जो उस दिन का लेसन है, जो फ्रेंच लेसन है, वो उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है. This was like a thunderclap. Thunderclap, a shock, जैसे बिजली कड़कड़ाती है, जैसे बादल गरजते हैं, उस तरह का जोर की जो आवाज होती है, उस तरीके का शॉक, एक झटका फ्रांस को लगा. ये शब्द उसके लिए एक शॉक की तरह थे. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. अब उसको समझ में आ रहा है कि टाउन हॉल पे जो क्राउड था वो आज क्या देख रहे थे, आज क्या ऑर्डर्स आए थे. My last French lesson? Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. अब फ्रांस को लगने लगा, उसे समझ में आया कि वो जो बुलेटिन बोर्ड पे आज बुलेटिन आया था, आज जो इंफॉर्मेशन आई थी, वो इसी ऑर्डर के बारे में थी कि आज के बाद वो लोग फ्रेंच, जो उनकी अपनी मदर टंग है, वो नहीं पढ़ पाएंगे. I hardly knew how to write. मैंने तो अभी तक सीखा ही नहीं अभी पूरी तरह से कि कैसे लिखना है. क्या मैं और नहीं सीख पाऊंगा? ये सब फ्रांस सोच रहा है कि मैंने अपना कितना समय बर्ड्स के एग्स में या स्लाइडिंग में, इन सब चीजों के लिए कितना अपना टाइम वेस्ट कर दिया. और वही किताबें जो थोड़ी समय पहले तक उसे न्यूसेंस लग रही थी, उसे सिर दर्द लग रही थी और हैवी लग रही थी, उसे लगने लगा कि जैसे वो उन दोस्तों की तरह है जिनको वो अब छोड़ना नहीं चाहता. आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप सब क्लास 12 में हैं और नेक्स्ट ईयर यू विल एंटर कॉलेजेस. तो उस समय आपके फ्रेंड्स के लिए जो आपकी फीलिंग्स होगी, ऐसी ही फीलिंग्स आज फ्रांस के मन में है अपनी बुक्स के लिए. वो बुक्स जो फ्रेंच लैंग्वेज में हैं, जिनको अब उसे लगता है कि वो पढ़ नहीं पाएगा. सो फ्रेंड्स, बच्चों जरा बताएं, क्या आप समझ रहे हैं अभी तक? Oh, that's very fine. The numbers are rising and all of you are giving yes to the poll, which means till now, whatever we have read, you have understood. So that's very fine. So we'll get back to our text. Okay. So now he wants to say
एम हैमल टू, अभी थोड़े समय पहले तक उसको लग रहा था कि एम हैमल से आज खूब डांट पड़ने वाली है, सर ने आज खूब डांट लगानी है। अब उनके बारे में वो क्या सोच रहा है? The idea that was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. उसे जैसे ही लगा कि इसका मतलब आज के बाद मिस्टर एम हैमल को हम देख भी नहीं पाएंगे और उनसे हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, वो भूल गया उनके रूलर के बारे में, उनके टेरिबल वो रूलर वो की स्टिक जिससे उसको बहुत डर लगता था, और हाउ क्रैंकी ही वॉज, उसे लगता था कि सर जो है पता नहीं क्यों हमें इतना डांटते रहते हैं। तो उसे थोड़े समय पहले तक ही ये सब चीजें परेशान कर रही थी, बट नाउ ही इज फीलिंग सॉरी फॉर हिम। उसे लग रहा है कि है अब सर से नहीं पढ़ पाएंगे, सर को नहीं देख पाएंगे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. अब उसको क्या समझ में आ रहा है? Now I understood, अब मैं समझ गया कि सर के ऑनर में, हमारे टीचर के ऑनर में आज हमारे विलेज के जो एल्डर्स हैं, जो विलेज के लोग हैं, वो आए हैं सर को ऑनर देने के लिए, सर को रिस्पेक्ट देने के लिए, एंड टू देयर लैंग्वेज, जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज है उसको ऑनर करने के लिए। आज क्योंकि लास्ट फ्रेंच लेसन है, लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच लेसन है, तो सब लोग आज क्लास में प्रेजेंट हैं सर को ऑनर करने के लिए। And he understood why everyone had stood up in front of bulletin board, क्यों इतना क्राउड था, इतनी भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। So can we see a little explanation and some pictorial things about what we have just read? जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं। एम हैमल जो एड्रेस कर रहे हैं सब स्टूडेंट्स को और जो विलेज एल्डर्स हैं उनको, और वो क्या समझाते हैं उनको कि कहां से आया है? जर्मनी से, जर्मनी से, बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं। और एल्सेक एंड लॉरेन, आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे एक मैप है फ्रांस और जर्मनी का, और बीच में ये दो रीजन्स ऑल्सेज एंड लॉरेन जो कि रेड कलर से आपको दिखेगा कि रेड कलर से हाईलाइट किए गए हैं, और वो आपको मैं कर्सर से आई एम ट्राइंग टू शो यू विद अ कर्सर। और ये दोनों रीजन्स अब कहाँ आ गए हैं? जर्मनी के पास, राइट? ओके, I will undo this and will back to the text. Okay, M. Hamill address करते हैं students को, elders को, and he tells everybody this is the last French lesson. An order has come from Berlin. मैप में मैंने अभी आपको हाईलाइट करके दिखाया जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और वहां से ये ऑर्डर्स आए थे टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सेज एंड लॉरेन। और in words, ये जो words थे that this was the last French lesson, these words were like thunderclap, a shock, झटका to France. And okay, there's a little activity so that what you have just now read, to see if you have guessed the meanings right. अभी हमने जो टेक्स्ट पढ़ा उसमें कुछ वर्ड्स देखे थे। Let us see if you remember the meanings of those words. Scolding, remember, being rebuked. उसको डर लग रहा था scolding का। Scolding is मार का, झिड़क का, या उनके डांट का। तो being rebuked किसका? M. Hamill की डांट का डर लग रहा था। He was
afraid of being rebuked by M. Hamel because उसने अपना होमवर्क नहीं किया था. Bustle. Bustle जब वो स्कूल यूजुअली जाता था तो उसको काफी शोर सुनाई पड़ता था. सम एक्साइटेड एक्टिविटी, जो बच्चे जब एक्साइटेड होते हैं स्कूल आते हैं, शोर मचाते हैं और बातें करते हैं आपस में, तो उस तरह की आवाजें उसे सुनाई देती थी इन यूजुअल डेज. टेम्पटिंग. टेम्पटिंग बिगनिंग में फर्स्ट जो हमारी स्लाइड में थी, हमने उसमें देखा था कि उसको टेम्पटेशन हो रही थी कि मैं जाऊं, बर्ड्स देखूं, ड्रिलिंग देखूं, आज सनी डे है, उसको एंजॉय करूं, राइट. सो कुछ ऐसी चीज जो बड़ी अपीलिंग, अट्रैक्टिव लगती हैं, तो शुरू में उसको स्कूल जाने से ज्यादा वो चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी. सोलेम. सोलेम लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच लेसन, जब वो स्कूल पहुंचा तो स्कूल उसे कैसा महसूस हुआ? सीरियस, सोलेम एंड स्ट्रेंज. ओके. रेजिस्ट. जब उसको टेम्पटेशन हुई थी टू वॉच बर्ड्स एंड वॉच ड्रिलिंग, उसने उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया था, कंट्रोल किया था, अपोज किया था उस टेम्पटेशन को. सो दैट इज रेजिस्ट. थंडर क्लैप. आई एम श्योर अब तक आपको थंडर क्लैप इज वेरी क्लियर. बीच में कई बार इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं. ऑल्दो इट्स द लाउड क्रैश मेड बाय थंडर, बट ओवर हियर हमारे टेक्स्ट में इसका मतलब है शॉक. तो क्या था शॉक? एम हैमल्स के वो वर्ड्स. क्या वर्ड्स? दैट दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. सो ड्राफ्ट. ड्राफ्ट बुलेटिन बोर्ड के ऊपर जो ऑर्डर्स आया करते थे, जो अथॉरिटीज की ऑर्डर्स और बुलेटिन आया करते थे, उनको कहा जाता है ड्राफ्ट. और आज क्या ऑर्डर्स थे लास्ट डे पर? that this was their last French lesson and from next day they would only be learning German. मतलब अपनी ही भाषा अब वो आगे से पढ़ नहीं पाएंगे. ओके. सो कमिंग बैक टू आवर टेक्स्ट, जो कि आपका ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट है. While I was thinking of all this, I heard my name called. अभी वो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि उसे अपना नाम सुनाई दिया. किसे? फ्रांस को. It was my turn to recite. Recite what? उसको जो होमवर्क मिला था, rules of participles. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. क्या दिल कर रहा था उसका कि आज मैं अपने रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स का जो मेरा होमवर्क है, मैं उसको इतना अच्छे से सुना पाता बिना किसी एक छोटी सी गलती के. बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स. क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, तो जब उसकी टर्न आई, बारी आई उसको रिसाइट करने की, जोर से सबको सुनाने की, वो नहीं कर पाया. And stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. वो बहुत शर्मिंदा था. वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी आंखें ऊपर उठा के देख भी पाता. वो इतना बुरा महसूस कर रहा था. He was feeling so bad. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. एम हैमल ने उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, बहुत आराम से कहा, मैं तुम्हें कोई डांट नहीं लगाऊंगा लिटिल फ्रांस, क्योंकि तुम खुद ही बहुत बुरा तुम्हें लग रहा है, बहुत बुरा महसूस कर रहे हो. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. रोज हम अपने आप को कहते हैं ना, अरे बहुत टाइम बचा है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, आई विल लर्न इट टुमारो, कल याद कर लूंगा. हम भी सब ऐसे ही करते हैं. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट.
देखो तुम सब, हम सब कहाँ आ गए हैं। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद ऑल सैज। यही सबसे बड़ी एक ट्रबल और परेशानी वाली बात है विद ऑल सैज। अब ऑल सैज का यहाँ मीनिंग है पीपल ऑफ ऑल सैज, कि हम सब जो ऑल सैज के निवासी हैं, जो ऑल सैज में रहने वाले लोग हैं, हम सब के साथ ही ये एक बहुत बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ, शी यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? ऑल सैज के लिए, ठीक है, मदरलैंड के लिए, जो उनकी अपना जो उनका डिस्ट्रिक्ट है, जो उनकी जगह है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। हम लोग, क्योंकि ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि किसके लिए यूज हो रहा है? लोगों के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि हम लोग लर्निंग को आगे 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 शिफ्ट करते जाते हैं, कल पे डालते जाते हैं। अरे आज मन नहीं कर रहा, चलो आज ये काम कर लेते हैं, चलो अभी ये कुछ थोड़ी देर मूवी देख लेते हैं, चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं। और हम लोग सोचते हैं पढ़ाई ये कल कर लेंगे, कोई नहीं, ये कल हो जाएगा। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। दोज फेलोज, किनकी बात हो रही है? जर्मन्स और प्रशा, वो प्रशा सोल्जर्स या जर्मन सोल्जर्स आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। वो आपको, उनके पास पूरा राइट है, हक है आप सबको कहने का, आप सबको पूछने का। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन? तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तुम कैसे फ्रेंचमैन हो जो अपनी ही भाषा, अपनी मदर टंग ना तुम बोल सकते हो ना लिख सकते हो? बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। अब एम हैमल फ्रांस को कह रहे हैं कि फ्रांस, सिर्फ तुम में ही ये कमी नहीं है। We have all a great deal to reproach ourselves with. हम सबको इसके बारे में अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत है, अपने आप को अपने बारे में सोचने की जरूरत है, और अपने आप को इसके लिए जिम्मेवार मानने की जरूरत है। Your parents were not anxious enough to have you learn. क्योंकि सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि तुम कॉन्टिन्यूसली स्कूल जाओ। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। बहुत सी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें काम पे भेज दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि विलेजेस में, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ काम पे भेज दिया करते हैं। कई बार छुट्टी करा देते हैं कि आज छुट्टी करो और आज इस काम के लिए आपको जाना है, और बच्चे जाते हैं। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, क्योंकि उन्हें कुछ पैसों की जरूरत होती है या रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो बच्चों की हेल्प ली जाती है। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने आप को भी इसके लिए ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो भी अक्सर बच्चों को छुट्टी दे दिया करते थे जब उन्हें फिशिंग पे जाना होता था, या बच्चों को अक्सर भेज दिया करते थे वाटरिंग द प्लांट्स। उनका जो आगे गार्डन था उसमें बच्चों को की ड्यूटी लगा दिया करते थे कि आज तुमने पौधों को पानी देना है। इस तरीके से वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं, और इसके लिए वो क्या कहते हैं, वो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ये हम सबके साथ ट्रबल है। वी दैट ऑल सेज, जैसे वो ऑल सेज के लिए कह रहे हैं कि शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है, जो टर्म यूज होती है, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। आपके स्क्रीन पे, आपकी स्लाइड में टॉप पे आपको एक वर्ड नजर आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, PROCRASTINATION, प्रोक्रेस्टिनेशन, जो आपको शायद इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर है। लेटर, काम को आगे आगे पोस्टपोन कर देना, कि अगर आज कोई जरूरी काम है
तो नहीं कल कर लेंगे। जबकि इवन हम लोगों ने भी बचपन में जैसे दोहे पढ़े हैं, तो हम क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो बेसिकली इस दोहे का भी जो मीनिंग है वो यही है कि जो आप काम कल के लिए सोच रहे हो, फॉर टुमारो, आज ही कर लो, बिकॉज यू नेवर नो कब क्या हो जाए। और आज हम उसी सिचुएशन में भी हैं। कोविड-19 की वजह से वी ऑल आर सिटिंग एट आवर होम्स। शायद बहुत से जरूरी काम छूटे होंगे लोगों के, और बहुत सी बार उसकी वजह क्या रहती है, प्रोक्रेस्टिनेशन। और इसके लिए मिस्टर एम हैमल सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं, खुद को भी ब्लेम करते हैं। वो पेरेंट्स के लिए तो कहते हैं कि पेरेंट्स प्रेफर्ड टू पुट चिल्ड्रन टू वर्क ऑन अ फार्म और मिल। उन्होंने बच्चों को फार्म पे या मिल पे काम करने के लिए भेजा, बट वो खुद के लिए भी कहते हैं कि he sent them students for watering his plants and gave them a holiday when he went for fishing। जब उन्हें फिशिंग पे जाना होता था तो बच्चों को कई बार छुट्टी दे दिया करते थे। Okay, M. Hamel went on to talk of French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। अब एम हैमल बोलते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज जो उनकी मदर टंग है, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, वो उसके बारे में कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। होना भी चाहिए, सबको अपनी मदर टंग सबसे खूबसूरत लगनी भी चाहिए। और वो कहते हैं क्योंकि इट्स द मोस्ट क्लियरेस्ट, लॉजिकल, बहुत साफ और लॉजिकल लैंग्वेज है। और ये सच है कि फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि उसको बहुत क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज माना जाता है। और वो क्या कहते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज को, ये हमारी एक धरोहर है, इसे हमें संभाल के रखना है, इसे भूलना नहीं है। चाहे अब आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए, बट अगर आप अपनी फ्रेंच लैंग्वेज, अपनी मदर टंग को अगर नहीं भूलेंगे तो ये एक चाबी की तरह, उस चाबी की तरह काम करेगी जो आपके जो प्रिजन के ताले हैं, प्रिजन, क्योंकि अब ये लोग आजाद नहीं हैं, एक तरह से ये लोग जर्मन रूल के अंडर हैं। तो एक तरीके से जर्मनी इनके रूलर्स हैं, कॉन्करर्स हैं। पर वो क्या कहते हैं कि आपके ये प्रिजन के ताले, जैसे हमारा देश अंडर ब्रिटिश रूल था तो एक तरह का वो प्रिजन था, पर उसके ताले की चाबी कहाँ होती है, हमारी मदर टंग। तो कहते हैं अगर आप लिबर्टी, फ्रीडम चाहते हो, अगर आपको लगता है कि अगर आप फ्रीडम हासिल कर सकोगे तो वो कर सकोगे अपनी मदर टंग के जरिए। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it। और उसके बाद एम हैमल ने ग्रामर की बुक खोली, उसमें से ग्रामर का लेसन देना शुरू किया। एंड आई वॉज अमेज्ड, फ्रांस क्या कहता है कि मैं इतना हैरान था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। जो कुछ भी एम हैमल कह रहे थे सब इतना आसान लग रहा था। एक स्लाइड फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में देखते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। जो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमल ने क्या कहा, इट्स द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज, इट इज की टू देयर प्रिजन एंड विलेज एल्डर्स, फ्रांस इज फीलिंग सॉरी फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल मोर। They had come in a way of thanking the master and show respect for their country. Okay, coming to the text. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us. Grammar के बाद M. Hamel, जो टीचर हैं, फ्रेंच टीचर, वो हमारे लिए कॉपीज, नई नोटबुक्स, कॉपीज लेकर आए थे
written in a beautiful round hand. France all says, France all says. उन्होंने जो नोटबुक सबको दी लिखने के लिए, उस पे खुद हर नोटबुक पे बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग में उन्होंने लिखा था फ्रांस, जो उनके देश का नाम है, ऑल सेज, जो उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उनके कस्बे का नाम है, जो उनका जो फ्रांस का जो हिस्सा था बट अब जर्मनी के अंडर आ गया है. They looked like little flags floating everywhere in the school room. ये जो उनकी जो हैंड राइटिंग थी, ये जो नोटबुक्स थी, ऐसे लग रहा था जैसे पूरे रूम में फ्रांस के फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. आपको देखना चाहिए था कि कितना हर कोई कितना काम में बिल्कुल मशरूफ था, बिल्कुल बिजी था और इतना ज्यादा तन्मयता से अपने काम में बिजी था. How quiet it was. बिल्कुल शांति थी. The only sound was the scratching of pens. जब आप एग्जाम में लिखते हैं ना, जब बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं, तो एग्जाम हॉल में आपको क्या आवाज सुनाई देती है? सिर्फ पेन्स के चलने की आवाज. जो स्पीड से आप लिख रहे होते हैं, वो जो स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स मतलब जब आप लिख रहे हैं तो वो जो आवाज आ रही है, सिर्फ वो आवाज ओवर द पेपर वाज हर्ड. वही सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी. Once some beetles flew in. बीटल्स इंसेक्ट्स होते हैं, बड़े ब्यूटीफुल से कलरफुल इंसेक्ट्स होते हैं, जो क्योंकि बाहर गार्डन है तो गार्डन में से कुछ बीटल्स जो है कमरे में आ गए हैं. बट nobody paid any attention. बट किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबका ध्यान कहाँ है? अपनी नोटबुक्स में. Not even the littlest ones. जो younger ones होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं. Remember, this is a French classroom जो आज से कितने 100 साल पहले की बात हो रही है. उस जमाने में अलग अलग क्लासरूम्स नहीं होते थे. एक ही क्लासरूम में छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बड़े बच्चे भी पढ़ रहे हैं. सो लिटलेस्ट वंस, वो छोटे छोटे किंडरगार्टन के बच्चे, जो जैसे प्राइमरी क्लासेस के बच्चे जो वहां बैठे, उन्होंने भी उन बीटल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया. Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French. ऐसा लग रहा है कि जैसे सब अपने फिश हुक्स को देख रहे हैं. फिश हुक क्या होता है? जब आप फिशिंग के लिए जाते हैं तो एक हुक होता है जो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, और उसको अपने बहुत ध्यान से आप देखते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो नीचे की तरफ टर्न करता है तो आप समझ जाते हैं कि इसका मतलब फिश जो है वो अटक गई है हुक के अंदर. तो आप इमीडिएटली आप उसको पुल कर लेते हैं ऊपर. तो आज ये बच्चे इसी तरीके से अपनी किताबों में, अपनी कॉपीज में, उनकी जो नोटबुक्स में, उसमें इतना ध्यान उन्होंने गढ़ा रखा है जैसे कि फिश हुक्स हों. On the roof, the pigeons cooed very low. रूफ के ऊपर पिजन्स भी, जो कबूतर हैं, वो भी बहुत धीरे धीरे गुटर गूं धीरे धीरे कर रहे हैं, एज इफ जैसे वो भी समझ रहे हैं कि आज माहौल जो है बहुत डिफरेंट है. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन? क्या सोच रहा है फ्रांस? क्या इन पिजन्स को भी, जो जर्मन्स हैं, जो ऑर्डर आया है, क्या वो इनको भी मजबूर करेंगे जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए? हमें एक पोलिंग का रिजल्ट मिला है कि क्या आप समझ पा रहे हैं. एंड आई एम हैप्पी टू सी that most of you, 96% of the students are able to understand. So I am bit satisfied कि मुझे अभी फिलहाल कोई चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है. So I will close this poll and resume to our text. अब जैसे फ्रांस सोच रहा था, क्या वो जर्मन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे? Even the pigeons. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at the other, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. अब जैसे ही उसने थोड़ा सा आंख उठा के एम हैमल को देखा, उसने क्या देखा कि एम हैमल बिल्कुल मोशनलेस,
बिल्कुल बिना हिले डुले बैठे हैं इन हिज चेयर। कभी एक चीज को देखते हैं, कभी दूसरी चीज को देखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आज वो हर चीज को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हैं, वो पूरी क्लास की इमेज को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place। तो क्या मतलब, मिस्टर एम हैमल पिछले 40 साल से इस स्कूल में, इस जगह पे पढ़ा रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर उन्होंने एक छोटा सा गार्डन क्रिएट किया था जिसको वो बहुत प्यार करते थे। और जैसा उन्होंने खुद कहा, उन्होंने ब्लेम किया अपने आप को कि अक्सर वो बच्चों को अपने गार्डन की देखभाल के लिए भी भेज दिया करते थे। आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। Shall we see a picture of the classroom? M. Hamel, आपको पिक्चर में दिख रहा है M. Hamel. He is delivering the last lesson. He explained everything with much patience. He wanted to give them all he knew in one stroke. ऐसा चाहते थे कि जैसे एक ही स्ट्रोक में, एक झटके में वो जो कुछ भी ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके वो बच्चों को और जो एल्डर्स वहां हैं सबको वो बता दें। उन्होंने क्या क्या कराया? ग्रामर, हिस्ट्री एंड राइटिंग, एंड ही हैड करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। जब बच्चों ने भी कुछ लेसन्स रिसाइट करे उसको भी वो बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ सुनते रहे। और क्लास का क्या सीन है उस समय पर? जो बच्चे हैं, फ्रांस या और एल्डर्स, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? All Mr. M. Hamel explained seemed too easy. फ्रांस क्या कहता है कि मिस्टर हैमल जो समझा रहे हैं वो आज बहुत आसान लग रहा है। वो उनके लिए नई कॉपीज लेकर आए जिन पे फ्रांस ऑल सेज लिख कर लाए थे अपनी हैंडराइटिंग में। जस्ट सी हिज लव, हिज पैशन, हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स टीचिंग, कि वो अपने हाथ से कितनी देर तक बैठ के उन्होंने नोटबुक्स पे अपने हाथ से अपनी हैंडराइटिंग में लिखा होगा। और everyone was set to work, हर कोई इस समय पे जो काम उन्हें दिया गया है, क्योंकि मैंने बताया कि एक ही क्लासरूम है, अलग अलग लेवल के, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं, सबको अपना अपना काम मिला है, हर कोई अपना काम कर रहा है। कुछ बीटल्स आए बीच में, कुछ इंसेक्ट्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स आए, बट उनको भी किसी ने नोटिस नहीं किया। यहाँ तक पिजन्स भी जो हैं वो बहुत ही लो वॉइस में कूइंग हो रही है, जो गुटरगू है बहुत धीरे धीरे हो रहा है, जिसपे फ्रांस को लगता है क्या इनको भी जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट, द लास्ट section of your text. All at once the church clock struck 12, और तभी 12 बजे चर्च क्लॉक में। चर्च क्लॉक क्योंकि उस जमाने में और अभी भी बहुत सी जगह पर है कि चर्च की एक बड़ी सी, जिसको घंटा घर भी कह दिया जाता है, बड़ी सी क्लॉक होती है जो जिसपे टाइम के लिए एक बहुत बड़ी सी क्लॉक होती है, उसके ऊपर जब 12 बजते हैं तो जोर से आवाज आती है। देन दी एंजेलस, बड़ा सा घंटा जो बजा, उसमें 12 बजे। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल। और ट्रम्पेट्स विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे भोंपू आप कह सकते हो, या उस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसकी भी आवाज आई, जिससे पता चला कि जो प्रशंस हैं वो लोग अपनी ड्रिल से वापस आ रहे हैं। ड्रिल जो कि उनकी उसकी एक्टिविटीज होती थी, सोल्जर्स की जो एक्टिविटीज होती थी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमें सुनाई दी। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। अब एम हैमल खड़े हो गए अपनी चेयर से, बहुत ही उनका जो चेहरे का रंग है बिल्कुल पेल है, ही इज सो सैड। बट फ्रांस क्या कहता है? I never saw him look so tall. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक उनकी हाइट बढ़ गई है। Look so tall का यहाँ पे मीनिंग है his importance, his honor,
हिज वैल्यू, कि आज उनकी फ्रांस की नजरों में और लोगों की नजरों में उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी अहमियत है, वो इतनी बड़ी हो गई है कि ही इज लुकिंग सो टॉल. उनकी जो इमेज है वो इतनी टॉल हो गई है. माय फ्रेंड्स, सेड ही, I, but something choked him. मिस्टर एम हैमल कुछ कहना चाहते थे, बट जैसे ये लिखा है ना, I डैश I, वो शो करता है दैट समथिंग चोक्ड हिम. चोक्ड हिम मतलब जैसे गला उनका रूंध गया, उनके गले में आवाज रुक गई, वो कहते कहते रुक गए. ही कुड नॉट गो ऑन, वो ज्यादा कुछ नहीं कह सके. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक. वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, उनका गला रुक रहा था, उनकी आवाज रुक रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे. उन्होंने एक चॉक का पीस उठाया एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ताकत लगा के वो लिख रहे हैं. ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, बड़ा बड़ा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे. विवला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. उन्होंने अपना सर, अपना माथा वॉल के साथ, दीवार के साथ टिका दिया. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस. सिर्फ एक इशारा किया विद हिज हैंड, इशारे से. क्या इशारे से किया, कहा उन्होंने, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. उन्होंने जैसे इशारा किया कि बस अब खत्म, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे go. So let us see this in this picture. Mr. M. Hamel writing on the blackboard, Vive la France. France, vive la France, long live France. Poor man, his broken heart, his heart broken. Church clock struck 12. M. Hamel, he stood up, pale, choked. He wrote as large as he could, Vive la France, long live France. And he, through his gesture, he said, school is dismissed, you may go. So here ends your chapter, the story, the last lesson. But shall we see some word meanings? Although I hope you are now very well aware of these meanings. Recite. फ्रांस को जब रिसाइट करने के लिए कहा गया था, उसका होमवर्क to say aloud. Reproach, Mr. M. Hamel जब कहते हैं कि हम सबको we need to reproach ourselves with, हमें अपने आप को गुस्सा करना चाहिए, हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए. Cooed, pigeons, soft murmuring sound of pigeons. Trumpets, wind instruments. Choked, suffocated यहाँ में suffocated का मतलब है कि जब वो कुछ कहना चाह रहे थे but he could not say, क्योंकि उनका गला बंद हो रहा था, because he was so emotional. जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो sometimes we want to say something but we cannot. Okay, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, उनको विल हैव अ लुक ऑन दोस क्वेश्चंस. ये आपके पेज नंबर 7 पे ये क्वेश्चंस हैं. The first question is, what was France expected to be prepared with for school that day? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं होगा आपको बताना. फ्रांस को क्या होमवर्क मिला था? Rules of participles. Yeah, I'm sure आप लोग अपने आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अपने आप से you are saying the answer. Okay, the second question on page number 7 of your textbook, NCERT textbook, the book, the link of which is given on your aspiration account, but still for your convenience, I had taken the text. So I'm taking the questions as well. At page number 7, this is question number 2. What did France notice that was unusual about the school that day? उस दिन जब फ्रांस स्कूल पहुंचा, बुलेटिन बोर्ड पे नहीं रुका था देखने के लिए, पर जब स्कूल पहुंचा, स्कूल में क्या अनयूजुअल था. अब ध्यान रखिए कि अनयूजुअल वर्ड है, यूजुअल नहीं है. तो दो चीजें हैं, एक होता है क्वेश्चन जहां पे यूजुअल पूछा जाता है. अगर यूजुअल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ग्रेट बसल,
opening and closing of desk, lessons repeated in unison. But यहाँ पे रोज क्या होता था वो नहीं पूछा जा रहा, उस दिन क्या अलग था वो पूछा जा रहा है. तो क्या अलग था? It was all so still, quite a Sunday morning. Classmates already in their places. M. Hamill wearing special dress. Village people sitting quietly on the back benches. Mr. M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. बच्चों, आपको ये सारी पीपीटी और रिकॉर्डिंग आपके एस्पिरेशन अकाउंट पे मिल जाएगी, तो इसलिए डोंट वरी. ये सब जो आप क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, जो नोट्स या जो टेक्स्ट आपने अभी पढ़ा है, वो सब आपको अवेलेबल है आपके एस्पिरेशन अकाउंट पे. आप इसकी जो हमारी आज क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी आप फिर से देख सकेंगे. सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, उसको ध्यान से सुनिए. डोंट वरी अबाउट टेकिंग आउट और राइटिंग एवरीथिंग और टेकिंग आउट नोट्स. Okay, next question. Again at page number 7, question number 3. What had been put up on the bulletin board? Bulletin board? कहाँ था bulletin board? Town hall. Picture देखी थी हमने जहाँ पे लोग खड़े थे, crowd in front of the town hall and bulletin board. और जिसके बारे में फ्रांस को पता चलता है जब मिस्टर एम हैमल उन्हें बताते हैं. क्या बताते हैं उनको? That order had come from Berlin. मैंने बताया था आपको बर्लिन क्या है, जर्मनी की कैपिटल. उस समय पर भी प्रशा, हमने ऑल्दो प्रशा का नाम आया था कि प्रशा के सोल्जर्स या प्रशा ने कैप्चर किया है ऑल्सेज एंड लॉरेन, क्योंकि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे. बट उसमें भी प्रशा का जो मेन नेशन, जो उसका कंपोनेंट था, दैट वाज जर्मनी. और बर्लिन उसकी कैपिटल, राजधानी, जहां से सारे ऑर्डर्स आया करते थे. ओनली meant to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. क्या आया था ऑर्डर कि आज के बाद सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी. इसका मतलब अब वो अपनी मदर टंग नहीं पढ़ पाएंगे. ओके, क्वेश्चंस एट पेज नंबर 8. We'll do it quickly. First question is, what changes did the order from Berlin cause in school that day? School seemed strange and solemn. Village people were sitting quietly on the back benches. ये बहुत repetition है इसमें, जो इससे पहले आपने question किया. They were feeling sorry for the master. M. Hamill was wearing his special dress, his fine Sunday clothes. He was sad, heartbroken, but explained everything with much patience. Page number 8 पे second question. How did fans' feeling about M. Hamill and school change? Now this is very interesting. M. Hamill के बारे में उसकी feelings कैसे change हुई? M. Hamill ने जब बताया कि this was their last French lesson, these words were like thunderclap. He felt sorry for not learning his lessons. उसको बुरा लगा कि उसने अभी तक क्यों नहीं पढ़ा इतना कुछ. Books that seemed nuisance were not like old friends. वही किताबें जो थोड़ी देर पहले तक मुसीबत लग रही थी, अब अपने अच्छे दोस्त लगने लगी. He listened to M. Hamill so carefully that all seemed so easy. और वो मिस्टर M. Hamill को बहुत ध्यान से अब सुन रहा था कि उसको सब कुछ, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको चीजें आसान लगती हैं. और इसी वजह से पोल के अंदर students are saying कि they are understanding everything. He felt sorry for M. Hamill and forgot about his ruler and strict nature. वो भूल गया M. Hamill कैसे strict teacher थे, या उनका ruler जो कि उसको terrible लगता था. Okay, understanding the text के अंदर भी कुछ questions हैं, एक बार उनको भी we'll have a quick glance at them. The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? Village people had come to attend the last French lesson to pay respect to their teacher and their language. M. Hamill talked about French language at length and considered it to be the key to their prison. अब लोगों को अचानक उनकी language थोड़ा precious लगने लगी.
और वो लोग आए थे क्लास अटेंड करने। एम हैमल ने भी बहुत अच्छे से लेसन को समझाया, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में प्रेज करी फ्रेंच लैंग्वेज की कि ये बहुत ब्यूटीफुल और क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, और सब लोग सॉरी फील कर रहे थे। बट उनके अंदर एक सडन अफेक्शन आ गया था फ्रांस में भी अब फॉर हिज टीचर एंड फ्रेंच लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, ये सब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में हैं। फ्रांस थिंग्स, will they make them sing in German, even the pigeons, what could this mean? Remember, जब पढ़ रहा था तो उसे pigeons की आवाज आ रही थी। अब इसके कई आंसर्स हो सकते हैं जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ। एक नेचुरल रिएक्शन है एक फ्रेंच बॉय का टुवर्ड्स द इम्पोजिशन ऑफ जर्मन लैंग्वेज ऑन देम बाय देयर कॉन्करर्स। तो फ्रांस का जो रिएक्शन है, क्या उनको भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे, क्या पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे? ये एक बड़ा नेचुरल रिएक्शन है। फेल्ट बीइंग डिप्राइव्ड, उसको बुरा लग रहा है कि क्यों उनसे ये हक छीना जा रहा है उनकी मदर टंग को सीखने का। एंड कटिंग ऑफ देयर बॉन्ड विद द मदरलैंड, और उनका जो बॉन्ड है उनकी मदरलैंड के साथ, फ्रांस के साथ जो है वो उनका वो बॉन्ड तोड़ा जा रहा है। इंडिकेट्स हाउ फार द जर्मन्स वुड गो इन देयर अटेम्प्ट ऑफ लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। तो जल्दी से मैं आपको बताऊं, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म होता है जब हम किसी चीज में, अपनी लैंग्वेज में इतना प्राइड की फीलिंग होती है कि हमें लगता है कि नहीं ये सबसे अच्छी लैंग्वेज और सबको ये सीखनी चाहिए, और हम जबरदस्ती उनकी इच्छा के बावजूद उन्हें जबरदस्ती अपनी लैंग्वेज को सिखाने की कोशिश करते हैं, या अपनी लैंग्वेज को ज्यादा पावरफुल शो करना चाहते हैं, ज्यादा माइट उसकी दिखाना चाहते हैं और उसकी ज्यादा वैल्यू दिखाना चाहते हैं। दिस इज लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। ये आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और इसके इन क्वेश्चंस पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ फोन पे या आपके अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे आप इनको डिस्कस कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में हैं। और लिंग्विस्टिक शोविनिज्म जो कि सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, उसमें उसका मेंशन है, इसके बारे आप डिस्कस कीजिए। दीज आर वेरी जनरल क्वेश्चंस। कीजिएगा कि नेक्स्ट आपकी क्लास में, which is on Monday, नेक्स्ट क्लास, उसमें आपको इनके कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे जिनसे आप थोड़ा देख सकेंगे कि जो आपने बात की, जो आपने डिस्कस किया, कितना हद तक जो पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं उनके साथ आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो आई होप दिस इज ऑल। I hope you all have understood the content, the question answers, and the explanations were helpful and they were quite handy, I hope. Mr. Mohan, I am through with the... Thank you. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Should I escape? You have to stop sharing the screen. Okay, okay. I'll do that. Let me stop. Stop share. Okay. Is it done? No. Yes, Is it done? Yes. Okay. It was wonderful, Nandini. Thank you. I hope it was quite clear and helpful to the students. And I see a lot of chats coming up. Students were very happy. And although there are a few doubts as well, like they are asking about Angelus, which actually I mentioned that it's the big bell. But still they are asking, so we can clear these doubts in the next class, I hope. Yeah. But everything was very clear and quite easily understood.